before coming to you, I have applied minimum 70-75 jobs Wow. And from from Naukri.com. and उसमें कितने इंटरव्यूज आए होंगे आपको? Hardly एक या दो. When I come to you now, I have applied many times, but nobody is responding. One or two I have given interview, but I'm not getting selected, and I don't know why. There is a problem. Of course, there is a problem in my resume also, and I don't know how to break and how to crack this interview. मैंने ऋचिक 2 जगह अभी इंटरव्यू दिया जहां मैं सिलेक्ट हुई हूँ. उन्होंने सबसे पहले मुझे यही पूछा कि आपका जो रेज्यूमे है ना वो आउटस्टैंडिंग है. वो जो आपने मुझे कहा ना दैट 40% वाला वो धीरे धीरे बढ़ा. एक्चुअली उन्होंने मुझे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा है मेरे काम के बारे में कि मैं कैसे करूंगी क्या करूंगी. दे आर वेरी मच इम्प्रेस्ड ऑन दैट रेज्यूमे और वो रेज्यूमे देख के ही मेरा पैकेज बढ़ा रहे. फर्स्ट जो मेरा रेज्यूमे था ना एक्चुअली उसमें सिर्फ मैंने मेंशन किए थे व्हाट कैन आई एबल टू डू, बट आई हैव नॉट शोन माय अचीवमेंट्स. And in this resume I have mentioned my achievements, which is outstanding definitely, and people are inspiring with the resume. Wow, this is the brilliant candidate. Your guidance is helpful for me. You have changed my thinking level 360 degree. I don't even think about that ki how can I show my achievement, where should I have to mention, or where should I have to express my this thing. This is the main turning point for me. Wow. Now I can able to think, even if I'm applying for vice president job or senior manager job na, I can think about ki what he can able to do and whether I can able to do it or not. Right. And what should I have to do improve my skills. So and I don't know how to break and how to crack this interview. जब मैंने आपको ज्वाइन किया, then I come to know how I complete my this thing. It's 360 degree change. My interview, I'm giving the way I'm the giving interview also, and my resume also. Everybody is impressed on my resume only, and they are starting calling me and asking me, "What's your budget?" This is first time happens in my life. क्योंकि जितनी भी बार मैंने जब भी कभी मैंने रिज्यूमे दिया है वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, then they asking what's your experience, आपने क्या क्या किया है. But because of this resume they asking me first what's your expectations. ये first time मैं experience किया है. Wow. And second thing है ना कि अकाउंट मैनेजर जाने के लिए ना ऋचिक मैं थोड़ा डर रही थी कि whether I can able to do it or not. Definitely I have that much capabilities. I am doing same role. बट थोड़ा सा मेरे को प्रेशर था कि हाउ आई हैंडल दैट प्रेशर, दैट नंबर प्रेशर. बट जब फर्स्ट सेशन आपके साथ हुआ ना, देन आई कम टू नो यस आई कैन डू इट. एक्चुअली आई एम डूइंग इट, बट आई एम नॉट हैविंग दैट मच एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस कि मैं कैसे करेगी. करने के बाद आई कम वेरी कन्विंस्ड विद माय रेज्यूमे एंड दे आस्क मच क्वेश्चंस टू मी. जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो मुझे लगा था कि वो मुझे पूछेगा कि मैम आपने क्या किया, कैसे प्रोसेस फॉलो किया, या फिर आपने कैसे अचीव किया, आपका स्ट्रैटेजी क्या है. बट जब मेरा इंटरव्यू का पेपर मैंने उसके सामने, मतलब मेरा रिज्यूमे उसके सामने रखा और उसने पढ़ा ना, he said your resume is very much impressive ma'am, what is your budget? First time I asked him to give me 9 lakhs and he was not ready. Finally वो जाके 9 lakhs पे आ ही गया. Oh wow. And you had that courage to reject that because you had more offers, right? That is what is the entire essence of this, that you have the power, right? You have so many skills. आपके पास ये पावर होना चाहिए कि आप कौन से कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हो और किसको आप रिजेक्ट करना चाहते हो, राइट? एंड वन मोर थिंग ऋचिक, मुझे और एक बताना था. आपका जो फर्स्ट मैंने जो एकदम ज्वाइन होने से पहले एक वीडियो देखा था, बी हंटेड. आप मत ढूंढो, आपको लोग ढूंढेंगे, एंड इट वर्क्स फॉर मी. ये दोनों भी जगह पे ये लोगों ने मुझे ढूंढा है, लिंक्डइन पे. लिंक्डइन पे ही ये लोगों ने ही मुझे ऑफर किया था और जाके मैंने इंटरव्यू दिया. इसमें ये है, ही इज अ जनरल मैनेजर. उन्होंने मुझे अप्रोच किया और यहाँ पे ये तो फाउंडर है. उन्होंने मुझे अप्रोच किया. तो ये जो है ना आपका ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, इट्स रियली वर्क्स. मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल मेरा एक्चुअली आपने जो मुझे बोला था वो भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई. जैसे कि बैनर नहीं बना पाई, सिर्फ अबाउट डाला कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी का नाम ये डाला, मेरा जॉब टाइटल जो अभी का है वो डाला,
मैंने स्किल्स अपडेट कर दिए और मुझे ये दोनों ने भी बुला लिया। ओह अमेजिंग। सो आप कह रहे हो कि जो हमने लिंक्डइन में सीखा आपने केवल 70% अप्लाई किया होगा। आपके जो वीडियोस है वो तो इंस्पायरिंग है ही, आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो इंस्पायरिंग है ही, बट बिकॉज ऑफ माय टाइम कंस्ट्रेंट आई कैन नॉट कंप्लीट दैट। पर जो भी सेशन आपका किया ना, इट्स वेरी अमेजिंग। आप एक है ना फुल ऑफ एनर्जी हो, पॉजिटिव एनर्जी, जैसा सूरज रहता है ना जो लोगों को ऐसे देते रहता है, यू आर काइंड ऑफ दैट। आप लोग हमारा जो थिंकिंग लेवल है ना वो 360 डिग्री चेंज करते हो और आप हमको ये बताते हो कि हमारा क्या लेवल है और हम ये लेवल से सोच ही नहीं रहे हैं। मैंने सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल ही अपडेट किया, फिर मैंने कंपनीज के जो मेन वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको मैसेजेस डालना स्टार्ट किया। मैसेजेस मतलब क्या, मैंने इनविटेशन देना स्टार्ट कर दिया, और इन बिटवीन ही मुझे ये 2 फटाफट आ गए। मतलब मुझे मैसेज डाल के उनको मतलब कन्विंस भी नहीं करना पड़ा कि मैं जैसे कि आपने वो स्टोरी बताने को बोला था कि आप ये बताओ कि मैं आई एम अ कीन इंटरेस्टेड, व्हाई आई एम इंटरेस्टेड, व्हाट इज माय स्टोरी एंड ऑल, वो सब करने की जरूरत। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप वैसे ही जाऊंगी ना तो आई कैन अचीव आराम से 20 to 25 lakhs का पैकेज। फंटास्टिक है वो, काफी टाइम बचाता है। मेरा रिज्यूमे तो एकदम फटाफट बन गया उसमें। यूजुअली लोग कहते हैं कि घंटे लगते हैं उनको रेज्यूमे बनाने में। ये तरीके से तो मैं जिंदगी में नहीं बना पाती थी जब वो सॉफ्टवेयर नहीं होता था। तो भले मैंने लिखा कि मैंने ये अचीव किया है और मैंने ये किया है वो किया है, वो जो बुलेट पॉइंट्स बनते हैं ना उतना दिमाग तो मैं नहीं चला पाती जो फटाफट उसने करके दिया है। इतने इंटरव्यूज मैंने दिए रिचिक मेरे लाइफ में, बट मुझे इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जब पूछते थे ना हम आपको इतना क्यों दे, तो आई वाज लाइक स्टक। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि उनको कैसे कन्विंस करना है कि उतना मुझे क्यों चाहिए। राइट। भले मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इतना है। मैंने TCPL में इंटरव्यू दिया था आपका मतलब ये कोर्स में आने से पहले, और उन्होंने अच्छा दबा के इंटरव्यू लिया था मेरा। तभी उन्होंने मुझे पूछा कि आपने जब हुतामाकी छोड़ा और यहाँ पे आप आई तो आपने अच्छी खासी 30% हाइक ले ली है। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग 40% हाइक विद इन 1.5 years। तो हम आपको क्यों दे? दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज स्टक। पर मैं अगर वो टाइम उनको ये बताती थी कि आई एम नॉट अ बैक एंड मटेरियल, बेसिकली आई एम अ कैम मटेरियल एंड आई कैन अचीव, आई कैन ग्रो योर बिजनेस और इतना मैं आपको दे सकती हूँ, तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट कर। एक्चुअली आपने जो उस दिन सेशन लिया ना एंड आपने जो बोला कि आपको इस तरीके से कन्विंस करना है, एक्चुअली ना स्टार्टिंग में ना आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ टू कन्विंस द पीपल कि हाउ आई एम अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर देम, क्योंकि ये एंगल से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको इतना रेवेन्यू दे सकती हूँ या फिर मैं आपका इतना बिजनेस ग्रो कर सकती हूँ। ये चीज पे भी हम लोग कभी नेगोशिएट कर सकते हैं, बट वो सेशन था ना, वो मेरा थिंकिंग लेवल ही पूरा चेंज किया। यस आई कैन कन्विंस कि मैं ये आपको इतना ग्रो करूंगी तो डेफिनेटली आप मुझे इतना पैकेज दे ही सकते हो। in the context of recruiters, right? Now I have that much confidence। अगर मैं सीनियर मैनेजर लेवल के लिए या वाइस प्रेसिडेंट लेवल के लिए भी अप्लाई करती हूँ ना तो मैं डेफिनेटली उनको मतलब कन्विंस कर सकती हूँ। वाओ। अर्लियर मुझे 25% हाइक मिला है, बट एट दिस मोमेंट 25% हाइक इज अ गुड हाइक, because you already got a 30% hike almost a year back. So within 2 years you got 30% and उसके ऊपर another 25% hike. Amazing. That's absolutely amazing. And one more thing, यहाँ पे सिर्फ 25% हाइक नहीं देख रही हूँ, एक नया माइलस्टोन मैंने अचीव किया है। Now within the same organization, after 1 year, once you have taken training and you have really performed for them, we'll have to tackle that how we ensure that within the same organization we keep receiving these hikes, right? तो ये मेरा अभी advice है, आप एक बार सुन लो। What you need to do, जैसे हमने वो challenge action result statements बनाए हैं, so now what I want you to do is continue and in your current job every single week or at least once in 2 weeks sit कि मैंने last 2 weeks में क्या क्या achieve किया है, what were the metrics, वो लिखो and you have to keep meeting your manager and discuss this. आप manager को first day पे ये पता मिलना that what is my KPI, like what will my performance be and every time I exceed that performance what can I expect. ये ना एक थोड़ा सा clarity लाना चाहिए every month when you are showing your manager that see you have given me these KPIs, I have exceeded them. तो उससे क्या होगा, you are always going to be in the top 1% of the workforce in the company.